بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو نیو ولاگ گائز۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے ہم بالکل ٹھیک ہیں جی۔ یہ میرے والد صاحب ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں جی میرا یوٹیوب چینل ذیشان ولاگس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ خیریت ہے؟ میرے بیٹے کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے پروگرام جو ہیں ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ پہلے ہمیں بہت مشکلات نے گھیر لیا، پریشانیوں نے گھیر لیا جب ہمارا بیٹا ٹریول کے لیے تیار ہو گیا انڈونیشیا جانے کے لیے۔ جی ہمیں یہ احساسات ہوئے کہ ایسے دیار غیر میں ہمارا بیٹا کیسے گزر بسر کرے گا جہاں پر کوئی واقفیت بھی نہیں ہے۔ جی اس کے علاوہ وہاں کوئی رہنے سہنے کے لیے ان کی کوئی معاونت کرنے والا نہیں ہے۔ جی ایسے بہت پریشانیاں لاحق ہو گئیں، بہت زیادہ افسردہ دل ہوئے اور بہت سوچتے رہے کئی دنوں تک۔ جی لیکن جب وہاں سے بیٹے نے اخراجات گھر کے برداشت کر لیے اور پیسے بھیجنے شروع کر دیے تو ہم بہت خوش ہوئے کہ بیٹے نے وہاں سیٹل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگائی۔ الحمدللہ ذہین بچہ ہے بیٹا ہے میرا۔ جی گائز، ہمارا مین مقصد جو ہے وہ کسی کو ہیٹ پہنچانا یا پاکستان کی یا پاکستان کے لوگوں کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ سو ہم بھی الحمدللہ سے محب وطن ہیں، آپ سب محب وطن ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جو اسٹوڈنٹس طبقہ ہے یا جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے وسائل نہیں ہیں۔ آپ کسی بھی شہر میں چلے جائیں، کسی بھی پاکستان کے سٹی میں چلے جائیں، آپ کو بیٹھنے کے لیے آرام سے ایک بینچ تک نہیں ملے گا۔ سو مین مقصد ہمارا کسی کو ڈسائیڈ کرنا نہیں ہے، یہ بتانا ہے کہ جن بچوں کے والدین ان بچوں کو اجازت نہیں دیتے باہر نکلنے کی، باہر کنٹری جانے کی، یہ ویڈیو خاص طور پہ میں نے ان بھائیوں کے لیے بنائی ہے اور ان والدین کے لیے بنائی ہے۔ سب سے پہلے جناب ہم اپنا پرسنل جو میرا ایکسپیرینس تھا اور میرے والدین کا کیا رد عمل تھا، کیا رائے تھی، اس چیز کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ سو آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو ہماری آپ نے پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اور ڈیٹیل بھی ملے گی کہ آپ جو ہے پاکستان سے کسی اور ملک میں کیسے جا سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم والد صاحب سے جانتے ہیں کہ جب میں انڈونیشیا میں جا رہا تھا، جانے سے پہلے جو ہے ان کا رد عمل جو ہے وہ کیا تھا۔ جی جیسا آپ نے بتایا کہ آپ جو ہے نا اس ٹائم پریشان تھے کہ میں نے کہاں رہنا ہے، کس کے پاس رہنا ہے، کیا کھانا پینا ہے، تو اس ٹائم مطلب آپ کے کیا خیالات ہیں، تھوڑا کھل کے ہمیں بتائیں، یا میرے آڈینس کو، میرے سبسکرائبر کو بتائیں، کیونکہ جو ہے آپ فرسٹ ٹائم میری ویڈیو میں آ رہے ہیں ابو جان۔ دراصل بات یہ ہے کہ جب بیٹا جانے لگا ٹریول کے لیے بیرون ملک انڈونیشیا کی طرف، تو ہمیں بہت زیادہ پریشانی ہوئی پہلے تو جی کہ کیسے وہاں گزارا کرے گا اور وہاں سفر کرے گا، اکیلے جا رہا ہے گھر کو چھوڑ کر۔ جی ہاں۔ ان کی ماں اور میں بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ ان کے جانے کے لیے ہمیں بہت زیادہ دکھ ہوا، لیکن دل پر پتھر رکھ کر صبر کر کے ہم نے اپنی دعاؤں کے ساتھ انہیں رخصت کر دیا جی اور اللہ کے حوالے امانت سمجھ کر بھیج دیا گیا۔ جی جی، ابو جان کو معلوم تھا کہ میں انڈونیشیا جا رہا ہوں، ایسے ہے نا، آپ کو معلوم تھا نا؟ امی جان کو ہم نے اس لیے نہیں بتایا تھا، ہم نے راز رکھا تھا، میں نے بولا تھا کہ میں دبئی جا رہا ہوں۔ ایسے میں نے جو ہے وہ انڈونیشیا میں میرج کرنی تھی، تو اس لیے والد صاحب نے جو ہے ان کے نام کا مجھے ایفیڈیوٹ چاہیے تھا، تو والد صاحب نے میری بڑی سپورٹ کی ہے ماشاءاللہ سے، اور مجھے ساتھ لے کے گئے منسٹری میں۔ اور ابو جان نے بولا کہ بیٹا پریشان تو ہیں ہم، آپ جا رہے ہیں لیکن آپ جائیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ جہاں بھی جائیں ماں باپ کی دعائیں لے کے جائیں۔ اور ماشاءاللہ سے والد صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ لاہور میں گئے، باقاعدہ ہم لوگوں نے اپنے کاغذات جو ہے وہ اٹیسٹڈ کروائے۔ آپ کو یاد ہے نا ابو جان؟ ہاں، ہوٹل میں ٹھہرے ہم لوگ وہاں پہ ایک رات، تو ہم نے جو ہے لاہور سے اپنے ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ کروائے اور والد صاحب جو ہے وہ میرے ساتھ ہم لوگ گاؤں پھر واپس آ گئے۔ تو یہاں سے پھر میری فلائٹ تھی کراچی سے گائس، سو کراچی سے میں نے فلائی کیا اور انڈونیشیا ایئرپورٹ پہ مجھے خاتون نے ریسیو کیا، جو کہ سب سے میری بڑی بیوی ہیں، پہلی بیگم ہیں۔ اور الحمدللہ اب میری جو ہے وہ انڈونیشیا میں 2 شادیاں ہیں، اور پہلی بیوی بھی اور چھوٹی بیوی بھی ماشاءاللہ سے دونوں ہیں، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اور پہل تو کافی لوگ میرے اوپر باتیں کر رہے تھے کہ اس نے جو ہے اپنے سے بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لی ہے، اور بڑی تنقید بھی کی گئی میرے، اور میرے گاؤں میں میرے والدین کو بڑے لوگوں نے بولا کہ اب آپ کا بیٹا جو زندگی بھر، کیسے کیا کہتے تھے رشتہ دار، یہ جو دوست احباب ہیں وہ کیا کہتے تھے کہ بیٹا آپ کا گم ہو گیا، کیا اس کے بارے میں بتائیں ذرا۔ ہم گاؤں کے لوگ اور ساتھ قرب و جوار کے لوگ، رشتہ دار ہوں یا غیر ہوں، اپنے پرائے، جی ہاں۔ یہ ہم کسی کے بارے میں نامنیٹ کر کے نہیں بتا رہے جی جی کہ عمومی طور پر جو بات چل رہی تھی یہی چل رہی تھی، یہ بات کہ ذیشان جو ہے وہ وہاں پر
कमज़ोर हो जाएगा और लूट कर खा जाएंगे उसकी आमदनी को। और ऐसे जी जी। ऐसे तसव्वुरात और ख्यालात हर बंदा अपने जहन के मुताबिक जो है राय देता था, जो परेशानी का सबब बनती रहेगी। इसके बारे में बताएं, ये क्या कहते थे कि आपका बेटा आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, कभी वापस नहीं आया, क्या ये कई लोग हकीकत है? ऐसे भी थे, हाँ। कई चंद लोग ऐसे भी थे जो कहते थे वो हमेशा के लिए आपको खैर बात कहकर चला गया है। आपका जब सहारा था वो हमेशा के लिए छोड़ के चला गया। हाँ, भाई जो खेतों को संभालता है, घर की काम शाम हो रही है, हमारे खेत है सामने, तो इनको संभालता है। अच्छा जी अब्बू, अच्छा। तो रिश्तेदार जो मतलब कह रहे थे कि भाई आपका बेटा आपको हमेशा के लिए छोड़ के चला गया, ये भी कहते थे कि इसने अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी की है। हाँ, ऐसे भी कई लोग कहते थे कि इसने अपने से बड़ी उम्र की औरत से शादी की है, हाँ जिसके पहले घर से हाँ बच्चे भी हैं, जी हाँ इसने अच्छा नहीं किया। ये जी वो मुमकिन है इसको कहीं धोखा देकर कहीं और किसी चक्कर में फंसा दे। हाँ जी हाँ जी मुख्तलिफ लोगों के अपने जहन के मुताबिक उनके ख्याल आते। जी जी, हाँ जी। सही हो गया। तो अब्बू जान आपका क्या रद्द अमल था, मतलब आपके माइंड क्या सोचता था कि मेरा बेटा गायब हो जाएगा, गुम हो जाएगा, वापस नहीं आएगा नहीं, ऐसा ज़िंदगी? तो नहीं था हरगिज़। जी बात ये थी कि मुझे अल्लाह पर तवक्कल था जी और उस पर मुकम्मल भरोसा था 100% कि मेरा बेटा वापस आएगा और वहाँ सेटल भी हो जाएगा। जी यकीनन मेरी दुआओं के असरात ऐसे पड़े कि अल्लाह ने जैसे ही मैंने दुआ की, अल्लाह पाक ने वैसे कबूल फरमा ली जी और वैसे असरात इलाके पर भी पड़ते रहे जी और वहाँ पर उनका तहफ़्फ़ुज़ भी होता रहा, उनको आमदनी और हासिल होती रही। माशाअल्लाह अब मेरा बेटा वहाँ का नेशनल है, जब मर्ज़ी आए जाए, जी जहाँ रहे वहाँ इंडोनेशिया में, और घर पाकिस्तान में जब आए जाए। जी। तो अब्बू जान आप मुझे बताएं कि माहाना मैंने घर में कितने पैसे भेजे हैं इंडोनेशिया से पाकिस्तान में, आपको याद होगा? जिसान साहब मुतवातर जो है ना घर में 1 लाख रुपया भेजते रहे। और इसके अलावा इसके 8,000 10-15,000 ये अलग है ना जी उसके, हाँ, इसके अलावा 8-10 हज़ार वो अलग हैं। वीकली या हर 3 जी दिन हाँ, 4 दिन बाद जी हाँ। भेजता था ना मैं। ये रूटीन रही है जिसान साहब की कि हर माह 1 लाख से कम कभी भी नहीं भेजे। जी हाँ। हाँ जी। अब्बू जान बहुत से लोग कह रहे थे कि ज़ीशान जो है वो अपनी बेगमात को लूट के पाकिस्तान में आ गया, इस बारे में आपका क्या है? नहीं नहीं, गैस ये इस बात पर यकीन रखें कि लोगों ने गलत किस्म के तअस्सुरात छोड़ने शुरू कर दिए दूसरे जी अपने भाइयों दोस्तों बुजुर्गों में। जी हालांकि हरगिज़ ऐसा नहीं है। ज़ीशान ने अपने पाँव वहाँ जमा लिए और जी उसकी आमदनी जो है काफ़ी 2 अच्छी है। घरों का जो है ना बोझ उन्होंने खुद ही बर्दाश्त कर लिया जी हाँ और उनको अखराजात जो है घर की ज़रूरियात ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें अशिया खुदनी और लिबास वगैरह दोनों बीवियों को मुहैया करते रहे। ना सिर्फ वो घर चला रहे थे, हमारा घर भी चला रहे थे और अपनी बहनों का घर भी चला रहे थे। जी इंशाल्लाह जी। जी गाइस, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये अभी की बात है, मैं नई मोटरसाइकिल लेके आया तो किसी ने मोटरसाइकिल पार्क की हुई, किसी ने जो है ना उसका मीटर और उसका क्लच और जो है उसके मॉडीगार्ड पे निशान डाल दिए मोटर बाइक के, ये सामने खड़ी है। तो मैं फिर इसकी रिपेयर करवा के, जेलसी में किसी ने तोड़ा है, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ मेरे से। उस दिन आपने बोला ना कि आपसे गिरी होगी, भाई मेरे से नहीं गिरी, किसी ने जेलसी में आके तोड़ा है इसका। ये हालात है यहाँ पे। मतलब फ़ाइनल तौर पे आपको अब कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है या कोई परेशानी वगैरह नहीं है, ऐसे है ना? यस। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, अब्बू जान जी अभी बिल्कुल खुश हैं, ठीक हैं। अच्छा ये बताएं अब्बू जी कि जो लोग मतलब कि बहुत सारे जो है ना फैमिलीज़ वगैरह ना अपने बच्चों को इंडोनेशिया में या किसी कंट्री में भेजना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान में काफ़ी टाइम से हैं और माशाल्लाह से आप रिटायर्ड फ़ौजी भी हैं, तो आपका इस बारे में क्या रद्द अमल है कि लड़कों को पाकिस्तान से बाहर निकलना चाहिए या यहाँ पे उनका फ्यूचर या मुस्तकबिल बेहतर है? जहाँ तक बाहर भेजने का ताल्लुक है, हाँ वहाँ इल्म का होना लाजमी है, ज़रूरी है। जी इल्म हासिल करने के लिए, जी घर से बाहर जाने के लिए जो बेटे जाते हैं घर से बाहर जी हाँ रोज़गार के लिए की खातिर या तालीम की खातिर जाते हैं, जी तो उनका दिमाग चौड़ा होता है इल्म हासिल करते करते। और उनकी जो है ना आमदनी में भी इजाफा होता है, इसके अलावा उनका असर और रसूख जी और घर जब आते हैं तो कई सालों के बाद वो ऐसे कदर व मंज़िलत की निगाह से देखे जाते हैं। जी जी। हाँ, लोग उनकी बहुत ज़्यादा तकरीम इज़्ज़त करते हैं। तो मेरे वालिद साहब माशाल्लाह तबलीगी जमात के साथ जो है ना अक्सर जो है वो
ताल्लुक़ रहता है इनका। टिल्ला वगैरह भी लगाया हुआ है उन्होंने, सिरोज़ा भी लगाते हैं और अशरा भी लगाते हैं। सो वालिद साहब ने बोला है कि अभी कम अज़ कम 3 दिन ना सहरोज़ा। वालिद साहब कह रहे हैं कि सिरोज़ा जो है ना मैंने लगाना है, तो आप जो है वो मेरी थोड़ी सपोर्ट करें। मैंने कहा मोस्ट वेलकम, इंशाल्लाह। आपने मेरी सपोर्ट की थी तो मैं आपके लिए हाज़िर हूँ, मेरी जान भी हाज़िर है अबू जान आपके लिए। तो माशाल्लाह। और थोड़ी सी एक पुरानी यादें ताज़ा करवा दूँ कि ये वो जगह थी, यहाँ पे बैठ के जो है ना मैं उस टाइम जो है फ़ोन पे बातें किया करता था। उस टाइम जो है मेरा इंडोनेशिया में बहुत अच्छा यानी रिलेशन था इंडोनेशियन ख़ातून के साथ, और वो मेरे अबू जान के साथ भी बात करती थी। ऐसे है ना अबू जान? हाँ जी हाँ, वो जो है अबू जान के साथ भी बात करती थी। तो अम्मी को भी पता था, सारी फैमिली को पता था। लेकिन मैंने घर पे बताया जब तो कि मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने बोला कि इंडोनेशिया की तो इकॉनमी लो है, करेंसी लो है, वहाँ पे तो लोग गरीब हैं, वहाँ के लोग तो दूसरी जगहों पे काम करने के लिए जाते हैं, या ये है वो है। लेकिन ऐसा नहीं है। इंडोनेशिया की जो इकॉनमी है वो पाकिस्तान से बल्कि इंडिया से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी जीडीपी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसके अलावा जो है ये G20 कंट्रीज़ में आ चुका है इंडोनेशिया जो है, और ऑस्ट्रेलिया और बाकी जो अच्छे अच्छे कंट्रीज़ हैं वो इंडोनेशिया के बिल्कुल साथ लगते हैं। हमारा हरगिज़ मकसद जो है वो पाकिस्तान को डिग्रेड करना नहीं है, बल्कि ये बताना है कि बाहर के कंट्रीज़ में और यहाँ पे जो है क्या फ़र्क है। यानी बाहर के लोग जो है वो जो बाहर रहते हैं वो दूसरे लोगों को क्यों मना करते हैं। अब मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मेरी जो बुआ जान है, यानी कि मेरे अब्बू की जो बहन है, उन्होंने 4 साल 5 साल सऊदीया लगाए, उनसे वीज़ा मांग के हम थक गए, लेकिन उन्होंने हमें वीज़ा नहीं दिया। अब वो ऐसे है ना, हाँ जी। आप कितने साल मांगते रहे हो वीज़ा? कितने साल? तकरीबन हम 7 साल मांगते रहे वीज़ा, हाँ, कि हमें उन्होंने वीज़ा। वीज़ा फिर भी ना दिया है। जी, तो उन्होंने कोई वीज़ा नहीं दिया ना। हाँ जी। और ख़ुद की माशाल्लाह उनकी जो है वो कोठियाँ बनाई हुई हैं, ज़मीनें ख़रीदी हैं, सारा कुछ। और हम जब कहते थे तो कहते थे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो लोग फॉरेनर हैं, जो लोग बाहर कंट्रीज़ में बैठे हैं, वो बहुत अच्छे पैसे कमा रहे हैं। आप यकीन करें कि 35 से 40 हज़ार रुपया मंथली पाकिस्तानी रुपीज़ जो है वो, ये उनके लिए आम सी बात है। ये 3-4 घंटों में वो लोग कमा लेते हैं। लेकिन अगर कोई बंदा जाने की बात करे, ठीक इस तरह जिस तरह मिंटू फैमिली वालों ने बोला कि हम पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं, तो हर बंदे ने बोला कि आप क्यों जा रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसे है वैसे। जो लोग आपको इस तरह कहते हैं वो ख़ुद क्यों बैठे हैं वहाँ पे। लेकिन इंडोनेशिया जो है ना उनके लिए भी बेस्ट ऑप्शन है, और बिज़नेस के लिए परचेजिंग पावर बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, क्राइम रेट ज़ीरो है वहाँ पे, बहुत कम क्राइम्स होते हैं। और इसके अलावा जो है लोग बड़े रिस्पेक्टिव हैं, इज़्ज़त करते हैं। ये अब्बू जान खुद बताएंगे कि मेरी दोनों बीवियाँ, हालांकि वो पाकिस्तान में नहीं हैं, इंडोनेशिया में मौजूद हैं, और कितनी रिस्पेक्ट करती है। अभी अब्बू जान आप खुद बताएंगे कितनी आपकी रिस्पेक्ट करती हैं मेरी दोनों बीवियाँ। ज़ीशान साहब की दोनों बीवियाँ, मेरा बेटा हुआ ज़ीशान साहब, इनकी दोनों बीवियाँ जो है बहुत इज़्ज़त करती हैं और इकराम के साथ क्या अपना वो जो है अस्सलाम वालेकुम कहकर पुकारती हैं। पहले अब्बा जी कहती हैं। इसके अलावा जो है इनफरादी तौर पर अगर उनको कुछ भेजना पड़े मेरी खातिर, तो इसमें भी पैसे भेजने में भी दरेग नहीं करती हैं, पैसे भी फ़ौरन भेज देती हैं। हालांकि और मुझे भी फोर्स करती हैं कि मतलब आप ज़्यादा ख़र्चा हम पे ना करें, आप वालिदैन को भी पैसे भेजें, ऐसे है ना अब्बू जान? हाँ जी। हालांकि ख़वातीन होती है वो कहती है कि यार आप सिर्फ मुझे खिलाएं, वालिदैन की खैर है, यानी कि हाँ तो वहाँ की ख़वातीन का जो है ये रद्द-ए-अमल। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इंडोनेशिया आप कैसे जा सकते हैं। ये जो है वो इन्फॉर्मेशन की हद तक है, मतलब किसी को मैं ये एडवाइस नहीं करता कि आप लाजमी जाएं, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इंडोनेशिया के अंदर क्योंकि बहुत आसान है वीज़ा यूरोप कंट्रीज़ की बनिस्बत, और यूरोप कंट्रीज़ के वीज़े तो सबसे पहली बात है बिल्कुल भी नहीं लग रहे। पाकिस्तान से तो आप इसका ख्वाब भी देखना छोड़ दें कि पाकिस्तान से कोई यूरोप कंट्री का वीज़ा लगे। हाँ अलबत्ता स्टडी वीज़े वाले हैं तो वो भी 50-60 लाख रुपये भर के जाएंगे। तो इसलिए आप लोगों के लिए इंडोनेशिया जो है सबसे बेस्ट ऑप्शन है। एक तो बहुत अच्छा तरक्की याफ्ता जो है मुल्क है और मज़ीद तरक्की में जा रहा है। इंडोनेशिया का पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग है, आपको PR भी यानी परमानेंट रेजिडेंसी भी आराम से मिल जाती है। इंडोनेशिया के 3 वीज़े हैं। जो पहला वीज़ा है वो है विज़िट वीज़ा 2 महीने का। जो दूसरा वीज़ा भी फ्रीलांसर का निकला है, जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं 1 साल का उनको वीज़ा मिलेगा, बैंक अकाउंट्स वगैरह ओपन कर सकते हैं, इसके अलावा रह सकते हैं, रेजिडेंसी कर सकते हैं, और खाना पीना और ये चीज़ें, इन चीज़ों के बारे में भी बताऊँगा कितना ख़र्चा आता है। तीसरा वीज़ा है बिज़नेस वीज़ा। आप अगर कोई बिज़नेसमैन है, वहाँ पे बिज़नेस डेवलप करना चाहते हैं,
क्योंकि पाकिस्तान में कई सारे मेरे दोस्तों ने कारोबार किया, मैंने भी उनको देखा कि यार कारोबार चल गया तो हम भी करेंगे, लेकिन उन बेचारों के काम ही फ्लॉप हो गए। तो हमारा भी दिल जो है वो खट्टा हो गया कि हमने भी यार क्या इन्वेस्ट करना है पाकिस्तान के अंदर। सो वो जो है बिज़नेस हजरात जो है बिज़नेस वीज़ा लेके यानी कंपनी रजिस्ट्रेशन करके उसके बिहाफ पे जो है बिज़नेस वीज़ा 2 साल का 1 साल का मिलता है वो लेके यानी कि इंडोनेशिया में बिज़नेस कर सकते हैं। और जो विजिटर हजरात हैं उनके लिए भी इंडोनेशिया ने एक वीज़ा इशू किया है, 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा है, यानी 2 महीने स्टे कर सकते हैं, 2 या 3 महीने का अरसा जो है परमानेंट, और हर 3 महीने बाद जो इंडोनेशिया से एग्ज़िट होना होता है। इसे 1 ईयर का मल्टीपल वीज़ा कहते हैं। तो ये तरतीब है। और मैरिज वाले जो है वो पूछते हैं कि मैरिज किस तरह करनी है, तो मैरिज वाले जो है वो विज़िट वीज़ा लेके जाते हैं और पाकिस्तान से चंद कागजात होते हैं वो लेके जाते हैं और शादी करके वहाँ पे उनका 1 साल का वीज़ा वहाँ जाके वहाँ पहुँच के तब्दील होता है, यानी कि वाइफ का जो है स्पॉन्सर लगता है, वाइफ की स्पॉन्सरशिप पे होता है। वहाँ पे जो है बिज़नेस जो है वो इकॉनमी यानी कि बिज़नेस के लिहाज से अगर देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग है बिज़नेस वहाँ पे, और परचेजिंग जो है वो बहुत हाई है, परचेजिंग लेवल बहुत अच्छा है वहाँ पे। आप पानी भी बेचेंगे ना तो पानी भी बिकेगा आपका। और घरेलू अखराजात वगैरह और रेंट वगैरह ये चीज़ें कम से कम आपको अच्छा से अच्छा, अगर जिस तरह पाकिस्तान में DHA में घर मिलता है इसी तरह का पाकिस्तानी 25 से 30 हज़ार में, इससे भी कम जो आपको इजीली जो है वो 2 कमरों वाला रेंट पे हाउस मिल जाएगा आराम से। और खाना पानी अगर घर में पकाते हैं तो आपका उतना ही खर्चा आएगा जितना पाकिस्तान में आता है। बिजली वहाँ पे सस्ती है, 1800 रुपये का जो है वो एक 67 यूनिट जो है 1800 रुपये के हैं, 67 यूनिट्स हैं। और इसके अलावा जो है गैस जो है वो वहाँ पे यानी कि यहाँ का 180 रुपये का इंडोनेशिया के अंदर 3 किलो या 2 किलो लगभग गैस मिलता है। तो गैस भी बहुत सस्ता है, यानी ज़्यादा महंगा नहीं है। सो हम लोग भी 1 सिलेंडर लेते हैं, 2 मियाँ बीवी, मतलब एक घर में 1 सिलेंडर 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम है जो है काफ़ी पड़ जाता है। सो फैमिली वाले लोग जो है वो भी जा सकते हैं, पूरी फैमिलीज़ जो है वो शिफ्ट हो सकती हैं, जिस तरह ये मिंटो व्लॉग्स वाले भाई लोग जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ये तरतीब होती है कि सबसे पहले जो है वो वहाँ का जो है 2 साल का जो है वो बिज़नेस वीज़ा लेना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम। 6 गिलास 200 रुपये दे, 6 गिलास 150 रुपया दिया, 6 गिलास दिया। मतलब अगर आप पूरी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते हैं तो फैमिली में से किसी भी एक फ़र्द का जो है वो बिज़नेस वीज़ा हो तो वो पीछे पूरी फैमिली को जो है वो स्पॉन्सर कर सकता है। एक फैमिली वीज़ा होता है, यानी कि स्पाउस की तासी से कहते हैं, वो इजीली लग जाता है। और इस तरह यानी कि वो फैमिली को भी इजीली शिफ्ट कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी लग जाता है, वाइफ का भी लग जाता है, यानी सारों का लग जाता है। तो ये तरतीब है जी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, माशाल्लाह बहुत दूर से हमारे मेहमान आए हुए हैं। और ये भाई जो है वो, क्या नाम है भाई आपका? मुदस्सिर शहजाद इनका नाम है। और ये दूसरे भाई हैं जनाब मोहम्मद शाहिद जो है ना। तो ये जो है तकरीबन 9 से 10 घंटे का सफ़र करके बेचारे मुझे मिलने आए हैं इतनी दूर से। आप लोग का बहुत शुक्रिया, आपने तकलीफ़ की, इतनी दूर से आए हैं माशाल्लाह। और कैसा लगा जनाब मिल के? हाँ, बहुत अच्छा लगा। चलो माशाल्लाह माशाल्लाह। और स्टडी आपकी कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आ रही है। अच्छा, स्टडी कंप्लीट हो गई है आपकी? हाँ, अभी 1-2 सेमेस्टर बाकी हैं। 1-2 सेमेस्टर बाकी। अच्छा माशाल्लाह, सेमेस्टर 1-2 बाकी हैं। अच्छा माशाल्लाह। पाकिस्तान के बारे में आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान में आप स्टडी करें, क्या आपको उम्मीद लगता है कि आपको जॉब मिलेगी या क्या चीज़, क्या तरतीब होगी आपकी? देखें, हुकूमत का आप वो देख लें हालात कैसे हैं जी। स्टडी कंप्लीट होगी, बाद में देखेंगे जॉब के लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन लगता नहीं है मुझे जी, ये तो है कि स्टडी तो चलो कोई नहीं, तालीम है, अच्छी चीज़ है, तालीम आप पूरी मुकम्मल करें कंप्लीट, और नसीब में होगा तो जॉब मिलेगी। लेकिन मैं तो आपको ये मशवरा दूंगा कि बजाय इसके कि आप जॉब करें, सोशल मीडिया पे कोई ऑनलाइन काम देखिए, और ऑनलाइन चीज़ों में ही ज़्यादा आजकल तो ऑनलाइन है ना, तो सारी इनकम वहीं से होती है। जी, मैं ज़ीशान भाई का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और 2 साल से मैं इनकी वीडियोस देख रहा हूँ, और काफ़ी टाइम के बाद ये पाकिस्तान आए हैं और मुझे आज मौका मिला है, मैं इनसे गुफ्तगू करने के लिए आया हूँ यहाँ पे इनके पास। कब से फॉलो कर रहे हैं? मैं तकरीबन आपको उस टाइम से फॉलो कर रहा हूँ जब आपके 100 सब्सक्राइबर थे। अच्छा, 100 सब्सक्राइबर थे? हाँ, 100 सब्सक्राइबर थे। हाँ। अच्छा, मैं जब गांव में वीडियोस वगैरह बनाया करता था तब से। गाँव में। जी गाइस, मैं अपने एक बहुत पुराने दोस्त से मिलने आया हूँ, तकरीबन 3 साल बाद आया हूँ, और इसका नाम है जनाब मोहम्मद मुदस्सिर। और इसके बड़े भाई जो है वो चैनल चलाते हैं माशाल्लाह, और चैरिटी का काम करते हैं इसके बड़े भाई। और ये माशाल्लाह माजूर हैं, ये देखें। और ये अभी जो है वो उम्रा करके आए हैं, तो इनको उम्रे की मुबारकबाद देनी है, और बहुत बहुत मुबारक होते हैं उम्रे दिन। खैर मुबारक इंशाल्लाह। इसको स्पेशल जो है ना, मेरी वापसी थी तकरीबन 12-13 की,
تو میں نے سوچا کہ اس کو جو ہے مل کے چلا جاؤں. مزمل بھائی تو ہے نہیں, لیکن جو ہے آپ کا نام کیا ہے؟ مدثر بھائی. ہاں مدثر ماشاء اللہ. چلو ہمارے لیے دعا کرنی ہے آپ نے انشاءاللہ خصوصی. ٹھیک ہے, دعا کر میرے واسطے. انشاءاللہ میں تارے تے بہت دعا کرے چھے. انشاءاللہ نچین میں بہت دعا کرے چھے. پانچ وقت نماز پڑھتا. ماشاءاللہ بہت اچھا لڑکا, بہت پرانا دوست ہے. جی کیا کیا؟ میں پانی پلا. نہیں پانی نہیں پینا میں, بخار تھی وہ دے. نہیں ٹھنڈا نہیں چاہیے بس. بخار تھی وہ دے. بچے جی ایک بیٹا ہے ماشاءاللہ میرا. گائس میرے دوست کا بھائی ہے جو بیچارہ معذور تھا, اس کو مل کے آیا ہوں میں. تو ماشاءاللہ سے اس نے جو ہے مجھے آب زمزم بھی پلایا ہے. بخار تھا مجھے, اور اس نے مجھے بولا ہے کہ میں تمہارے لیے ڈھیر ساری دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی دے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری جان کی, مال کی, عزت کی, ہر چیز کی حفاظت فرمائے. 5 منٹ پہلے کی بات ہے کہ میں اسی روڈ سے جو ہے واپسی کی طرف آ رہا تھا, اور کچھ جاہل لوگ جو ہے وہ موٹر سائیکل کی یعنی کہ سپیڈ بازی کر رہے تھے. اتنی سپیڈ سے جا رہے تھے. ہونڈے جو ہے اس نے اتنی قریب سے اور اتنی سپیڈ سے گزارا ہے میرے قریب سے بائک, مجھے پتہ ہی نہیں چلا. اور میرے جو ہے وہ ہینڈل پہ اس کی بائک کا ہینڈل ٹچ ہوا. اگر ذرا سے بھی مزید ہینڈل جو ہے وہ ٹچ ہو جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس ٹائم میری موت واقع ہو جاتی. لیکن بیچارے جو ہے وہ ملنگ بندے نے, بیچارے معذور لڑکے نے میرے لیے دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں گھر پہ خیریت سے پہنچائے اور ہمیشہ سلامت رہو. تو اس کی دعا جو ہے کام آ گئی ہے. اور دوسری طرف سے میرا گلہ بھی ہے, اتنا مطلب کہ بدتمیزی سے گزرنا اور اتنی سپیڈ سے گزرنا کہ یہاں پہ تو انسان جو ہے وہ اپنے راستے جاتا ہوا بھی بالکل محفوظ نہیں ہے گائز. دیئر از نو سیفٹی ان پاکستان. آئی ایم سو سوری گائز. فارنر یہاں پہ کوئی سیفٹی, نہ جان کی, نہ مال کی, نہ عزت کی. باقی اگر میری ویڈیو میں کسی بھی شخص کو کوئی بھی بات بری لگی ہو, آئی ایم ریئلی سوری. اور اسی کے ساتھ ہی آپ لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ ہماری ویڈیو کو یہاں تک دیکھا, ہمارا ساتھ دیا آپ لوگوں نے. اسی کے ساتھ ہی آج کے ولاگ کا اختتام کرتے ہیں. کل انشاءاللہ نئی ویڈیو ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم.